as yesterday we discussed about the transpose of matrix, right? So in case of a transpose of matrix, we just have to take two arrays, initialize the two arrays, and with the help of that two array we can achieve by interchanging their row into the column and column into the row elements, we achieve the transpose of matrix. Correct? उसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है? Anyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. okay. Is there any query related to the transpose of matrix? No, sir. Okay. So we will move further that how to multiply the elements of a 2n by n matrix. Now n by n matrix means 2 by 3, 3 by 2, 3 by 3, 3 by 4, 4 by 3, any, right? So that's why they give a n as a value of a row and value of column. Okay. So similarly here we also do the same thing, that stdio.h conio. Conio is basically used in Visual Studio, then Turbo C, or some of the compilers. But in most of the online compiler, I don't think so. It can be show the proper result. Just like I used yesterday here Conio. तो ये एक वीडियो मैंने कल बनाया था, उसमें कुछ भी साउंड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये अगर मैं एक्टिव कर देता हूँ तो यू कैन सी इट. Is it visible? Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the message is, सर हाँ yes, सर स्मार्टफोन पे रन नहीं होता वो प्रोग्राम. क्या होता नहीं? मतलब स्मार्टफोन पे अगर सी ऑनलाइन कंपाइलर पे अगर हम लोग गए हाँ हाँ. तो वो प्रोग्राम रन नहीं होता. Okay. So if you hide, if you comment Conio clear screen and get ch, still it will not run. सर करके नहीं देखा मैंने. नहीं, वो रन नहीं हो रहा, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि we are using the conio.h and conio is having the definition of clear screen and get ch, right? तो जैसे हमारे ग्रुप पे भी कुछ बच्चों ने भेजे हैं प्रोग्राम्स, तो उसमें मैट्रिक्स वाला है ना, गोकुल. गोकुल हैव डन द प्रोग्राम. यू आल्सो डन द प्रोग्राम, राइट? बट सर यहाँ पे रन नहीं होता, वहां पे रन होता. अच्छा, ओके ओके. ऑनलाइन पे जो गूगल पे हम कंपाइलर यूज़ करते हैं उस पे रन नहीं होता, ऐप में रन होता है. यस सर. ओके ओके ओके. सो द बेसिक थिंग इज सम ऑफ द कंपाइलर, जस्ट लाइक आई स्विच फ्रॉम GDB ऑनलाइन कंपाइलर, वो उसमें मुझे बहुत पहले अच्छा लगा वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती थी. बट जैसे जैसे प्रोग्राम्स ज़्यादा उसमें करते गया मैं, मे बी आई डोंट नो, it will always show the connection fail, though there is a internet connection is available, still it will show the connection fail message. So I switched to the C compiler from a program is कुछ तो भी है ये. So over here if you give a conio.h then it will show the error, right? few compiler not accept this header file, ये मैसेज भी दे दिया उन्होंने, ठीक है? कुछ कंपाइलर एक्सेप्ट करते हैं. जैसे सेम प्रोग्राम में अगर विजुअल स्टूडियो पे करता हो या फिर टर्बो सी पे करता हो, जो इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर हमें हमारे कंप्यूटर में, एंड देन इट विल वर्क. सो इंस्टेड ऑफ दैट I just give the comment to that particular program and if I run then it will definitely execute. इसको अगर मैं उसके बाद रन अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो जो मैंने वीडियो में आपको बताया है likewise. Then again there is a clear screen and get ch which is not at all necessary, ठीक है? Then moving towards the initialization of a array A1, A2 and C. This A1, A2 is just for one array that we multiply with the another array. Means element of a A1 array will be multiplied with the A2 array. ठीक है? Or vice versa, whatever. And the result will be stored into the C array which is of a 10 by 10. ठीक है? अब इन्होंने n की जो वैल्यू n by n मैट्रिक्स जो है वो उन्होंने 10 by 10 का लिया है.
then there is a variables I, j, k. So see, you can see over here uh, multiple for loops, and the multiple for loops is called as anyone, nested. नेस्टिंग ऑफ अ फॉर लूप. क्या बोलते हैं उसको? नेस्टिंग ऑफ अ फॉर लूप हम सर बोलते हैं. हाँ, यस. सर बेसिक स्मॉल डाउट था, अगर हमने इसमें ए 10 10 की जगह पे आईजी लिखा तो भी चलेगा ना प्रोग्राम में? हाँ, चलेगा, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. अदरवाइज इफ यू आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू, ब्लैंक भी दिया तो भी चलेगा. ब्लैंक का भी सिंटैक्स अलाउड है. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस सर फॉर क्योंकि इट. आउटपुट में तो वो पूछने ही वाला है ना कि एंटर द साइज ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा प्रोग्रामर के ऊपर कि वेदर यू आस्क टू द यूजर और वेदर यू जस्ट टेल द यूजर दैट वी आर हैविंग अ 3 by 3 मैट्रिक्स एंड हेंस यू एंटर द एलिमेंट्स. जैसे ये ऊपर का जो प्रोग्राम देखा है हमने, तो यहाँ पे क्या हर एक स्टेप पे वो नंबर डिमांड कर रहा है, एलिमेंट की डिमांड कर रहा है. ठीक है, एंटर द 3 by 3 मैट्रिक्स. इसमें उसने पूछा नहीं है, यानी हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी यूजर को. वी आर नॉट गिविंग एनी फ्लेक्सिबिलिटी टू यूजर that you just tell me that which dimension or which kind of a matrix that you want to choose. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स कितनी चाहिए, जैसे आपने आपके प्रोग्राम में रोज एंड कॉलम्स की डिमांड यूज़र को दे दी कि यूज़र बताएगा कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स. तो इसमें वो फीचर नहीं है ये प्रोग्राम में. ठीक है, सम वॉट इट इज़ रिजिड, इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ फ्लेक्सिबल. तो इसने फिक्स करके रखा ओनली 3 by 3 मैट्रिक्स मीन्स टोटल 9 एलिमेंट्स दैट कैन बी टेकन. अगर 2 by 2 मैट्रिक्स अगर है तो वो नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 by 2 मैट्रिक्स में 4 ही एलिमेंट रहेंगे, इसमें बचे हुए जो 5 एलिमेंट है वो 0 0 कंसिडर कर लेगा वो. ठीक है, तो वो भी एक चीज़ हम करके देख सकते हैं. सो हियर वी कैन यूज आइदर 10 और ब्लैंक और वी कैन यूज ऑल्सो सम वेरिएबल्स लाइक आई जे के. ठीक है, सो हियर वी यूज द आई जे के. आई इज यूज फॉर अ array A1, J is used for array A2, and for C we can use the K, and there is a two variables A and B for the size of a matrix. ठीक है, enter the size of a square matrix. Now they predominantly saying that there should be the square matrix. Square matrix means both dimensions are similar, 10 by 10, 5 by 5, 4 by 4, 3 by 3, right, in the both cases. And मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए. ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड जो है ये कौन सा ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन? एनीवन? arithmetic operator. Arithmetic operator, exactly. So the first message that we have to display, that is enter the size of square matrix, then read the value entered by the user. जो भी वैल्यू एंटर करेगा साइज कितनी होनी चाहिए, 5 10 15, यहाँ पे समझो जो भी वैल्यूज यूजर ने एंटर की वो, दैट वैल्यू विल बी असाइन. ए की वैल्यू हम असाइन करेंगे बी को, दस इट विल बिकम अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये एक सिंपल स्टेटमेंट लिखने की वजह से बी इक्वल टू ए आपका मैट्रिक्स क्या बन गया? स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया. क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, क्योंकि अगर आपने अगर ए को डिनोट किया, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ रो, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा. ठीक है, तो बी और ए की साइज अगर इक्वल करनी है देन वी कैन यूज द सिंगल इक्वल साइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, एग्जैक्टली. ये थोड़ा रिकॉल कीजिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर याद नहीं आता. तो इट इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर. सो ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी बी को. ए की वैल्यू कौन देने वाला है? हु विल गिव द वैल्यू ऑफ ए? यूजर. ठीक है, यूजर विल गिव द वैल्यू ऑफ ए. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स इन अ रो वाइज फैशन. ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यू हैव टू एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स और अ एरे इन अ रो वाइज फैशन. इसके पहले का जो प्रोग्राम था उसमें हमने क्या कॉलम वाइज लिया, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2. तो रो वाइज ही उसमें एलिमेंट स्टोर हुए, बट रिप्रेजेंटेशन जो था वो कॉलम वाइज था. ठीक है, देन for I equal to 0, I less than a, I plus plus. Then for j equal to 0, j less than b, j plus plus.
ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओवर हियर 10, यहाँ पे हम 10 लेने के बजाय हम क्या ले रहे हैं, ए और बी को ले रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर गिविंग अ प्रिविलेज टू द यूजर that which kind of a size of which kind of size matrix that you want to access। जो हमने पहले printf स्टेटमेंट में देखा कि यूजर को हम पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, ठीक है। दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10, 5, 6 और द वैल्यू ऑफ ए बी, वो हम नहीं यूज कर रहे, वी आर यूजिंग ओनली द ए एंड बी, because a value will be given by the user and that a will be initialized with a equal value of a b, जो a की value रहेगी वही b की value रहेगी with the help of this a single statement। now in the first case, first for loop, outer for loop, that will execute first and then inner for loop will execute, and now it will start the execution of the printf statement which tells us that enter the next element in the first matrix। पहले मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। वन बाय वन इट विल बी एंटर्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट इट विल इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 0, देन जे की वैल्यू लेस देन बी अगर है, इफ इट इज़ ट्रू देन दिस मैसेज विल बी डिस्प्ले। वंस द मैसेज विल बी डिस्प्ले देन यूज़र विल एंटर द सम वैल्यू 10, 20, 15, 8, 9, 10 जो भी होगी वैल्यू वो एंटर करेगा एज एन एलिमेंट वैल्यू, ठीक है। ये एक्चुअल एलिमेंट की वैल्यू रहेगी, ये साइज वगैरह के रिलेटेड नहीं है, मैट्रिक्स के साइज के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो इट विल स्कैन दैट पर्टिकुलर डेटा विथ ए ऑफ 1 आई जे। तो ये आई जे जो रहेगा, तो आई की वैल्यू क्या है फिलहाल 0, करेक्ट। फर्स्ट इटरेशन में यानी फर्स्ट एग्जीक्यूशन में जे की वैल्यू क्या रहेगी 0, मीन्स ए ऑफ 1, ये जो एरे रहेगा इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे 0, 0। Have you understood what exactly the scanf does? ये क्या कर रहा है? Yes, sir. हाँ, okay. So A1 0 0 means for loop first, outer loop and for loop second, inner loop वाला जो होगा वो इनिशलाइज हो जाएगा यहाँ पे, यानी 0 0 एलिमेंट की जो पोजीशन है वहाँ पे एक वैल्यू असाइन हो जाएगी जो यूजर ने ये मैसेज देखकर दे दी। देन वंस इट विल एग्जीक्यूट स्कैनफ, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट बाय 1, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 लेस देन बी। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 1 लेस देन बी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगेन इट विल आस्क टू द यूजर एंटर द नेक्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, मैसेज विल बी कॉमन, इट विल नॉट चेंज। देन अगेन ए ऑफ 1, यहाँ पे क्या चेंज हो गया, आई की वैल्यू हो गई 0, वो एज इट इज ही रहेगी क्योंकि आउटर फॉर लूप ये एग्जीक्यूट सिर्फ एक बार होगा और उसके बाद इनर फॉर लूप उतने बार एग्जीक्यूट होगा जितने बार कंडीशन ट्रू होती जाएगी जे लेस देन बी वाली, करेक्ट। वंस द कंडीशन बिकम्स फॉल्स इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर फॉर लूप एंड इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ आउटर फॉर लूप आई प्लस प्लस। आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी आउटर फॉर लूप की जब इनर फॉर लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। बट उसके पहले अगर हम 2x2 मैट्रिक्स अगर कंसिडर करते हैं तो जे की वैल्यू पहले 0 थी, 0 के बाद वो हो गई 1, 1 लेस देन 2, कंडीशन है ट्रू, तो यहाँ पे फिर A1 इन ब्रैकेट 0 इन ब्रैकेट 1 मीन्स A1 ऑफ 0 1, ये जो पोजीशन है आपके 2x2 मैट्रिक्स की राइट हैंड साइड कॉर्नर की, ठीक है। जैसे अब अगर हम उसको देखते हैं इन दैट केस, ये अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल इसको हम बोल सकते हैं 0, 0, देन अनदर वन इज 0, 1, ठीक है। तो इसमें अगर आपने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 11, ये उसकी एलिमेंट की वैल्यू है, बाकी वो जो है ये पोजीशन है, वी विल चेंज द कलर सो दैट इट विल बी identified। So red is the position and black is the element value which will be stored on that particular position। यहाँ पे हमने 12 दे दी।
ठीक है. Now value of I is 0 over here, then value of j is 1, just because it will increment it after the execution of a first iteration, first cycle, it will be incremented. Then it will complete and then it will ask for a again increment of a j. j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी. नाउ इट बिकम्स 2. पहले क्या थी 0, उसके बाद क्या थी 1, अब क्या हो गई वो इंक्रीमेंट होते हुए 2 हो गई. नाउ 2 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या है? false. False, right? Condition becomes false. In that case, inner for loop will stop execution because of the condition. Then it will reaches to the outer for loop where the value of I is still 0, but it will be incremented by 1. So the changes will be like this. यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड रो में एक्चुअली इट इज़ अ फर्स्ट रो, 0th रो फर्स्ट रो, बट नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं उसको सेकंड रो. तो ये फर्स्ट रो है एक्चुअली. पहली जो थी वो 0 थी, देन 0. आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट हो गई इनिशियली आई प्लस प्लस, तो 0 थी 0 की 1 हो गई. मीन्स दैट हम सेकंड पार्ट पे स्विच हो गए. नाउ अगेन इट विल जम्प टू द इनर फॉर लूप. अब इनर फॉर लूप में जाने के बाद फिर वो वैल्यू इनिशियलाइज होगी जे की 0. सो 1 0 यानी ए ऑफ 1 0 विल होल्ड द वन वैल्यू. कोई तो भी एक वैल्यू होल्ड करेगा जो यूज़र एंटर करेगा. सपोज यूज़र एंटर्स द 21 एज अ वैल्यू. उसको ब्लैक कलर कर देते हैं. देन व्हाट हैपन विद द नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या होगा? अगेन after the elements are entered by the user, it will be assigned to a of 1 0. then it will increment the value of j. j की पहले वैल्यू क्या थी? 0 थी. 0 के बाद हो गई वो 1. 1 होते से ही it will generate 1 0 1 1. 1 0 हो गया तो अब 1 1 आ जाएगा. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Right. So again the message will be there. next element को enter कीजिए printf and then scanf क्या करेगा? a1 of 1 1 यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा. फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इज 22. ठीक है. नाउ j वैल्यू विल बी अगेन इंक्रीमेंटेड. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप इज कंडीशन चेकिंग एंड थर्ड स्टेप इज बॉडी ऑफ द फॉर लूप एंड द फोर्थ स्टेप इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j. ठीक है, सेम रूल यहीं पे इसको भी लागू होता है आउटर फॉर लूप को. सेम रूल इनर फॉर लूप को भी लागू होता है. ठीक है. नाउ once you increment the value of a j, now in that case the value of j is initially 0, then incremented by 1 and then incremented it is a 2. जैसे 2 हो जाती है, so 2 less than 2 condition becomes true or false? False. False. so जैसे कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है, इट विल गोज टू द आउटर फॉर लूप. आउटर फॉर लूप में वैल्यू ऑफ आई इज ऑलरेडी क्या है? 1 है. 1. हाँ, तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी. ठीक है. वंस इट विल बी इंक्रीमेंट, सो आई वैल्यू बिकम्स 2 एंड ए की वैल्यू क्या है? वो भी 2. सो 2 लेस देन 2, अगेन हियर कंडीशन बिकम्स false, फॉल्स. यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड देन इट विल कंप्लीट द बोथ द फॉर लूप्स. Sir, हाँ, यस यस, बोला बोला. sir, तू कौन था? हाँ हाँ, हॅलो, आवाज येत आहे? सर सर 2 ने लक्षात आला सर माझा. टू म्हणजे कोणता 2? विच फॉर लूप? जे और आई? जे जे Okay, so j for loop will only I for loop will only execute at a one time, whereas j for loop will execute till it becomes false. The condition becomes false. पहले क्या होगा?
तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0। वो होने के बाद वो इमीजिएटली बॉडी ऑफ द फॉर लूप में एंटर हो जाएगा एंड इन दैट केस इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द जे की वैल्यू यानी कॉलम। जनरली हम एलिमेंट जब लेते हैं मैट्रिक्स में विल टेक द एलिमेंट्स लाइक दिस 10 20 30 40 right, this is 4 by 4 matrix 50 sorry 50 60 70 80 90 100। यहाँ पे थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी so that it will looks like matrix। so how we can achieve this space in the program, कोई बता सकता है स्पेस कैसे हम अचीव कर सकते हैं आउटपुट में? ये जो मैं स्पेस यहाँ पे दे रहा हूँ, हाउ वी कैन डू इट? एनीवन? नो वन डोंट अबाउट द फॉर्मेटेड आउटपुट? फॉर्मेटेड आउटपुट किसी को भी याद नहीं आ रहा है? ओके सहर्ष 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये पूरे के पूरे मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर कर दिए, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ अ 4 by 4 मैट्रिक्स, ठीक है। सो व्हाट हैपन व्हेन द फर्स्ट फॉर लूप विल एग्जीक्यूट, ठीक है, इट मीन्स दैट इट विल स्टिक टू द ओनली अ फर्स्ट रो, sorry zeroth row। we will try to practice like a zeroth row, ठीक है। it will target it to the zeroth row and zeroth column, then zeroth column होने के बाद हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो पहले जनरली हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वी विल मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम, करेक्ट? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है, यस सर। पहले रो देन कॉलम और उसका जो भी वैल्यू आ जाएगा तो वो एक वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो मीन्स in that case first I will execute, means for loop, outer for loop will execute one time, then the inner for loop will execute for the n times। n times means depending upon the value of b की जो वैल्यू रहेगी उससे n minus 1 टाइम्स, ठीक है। अगर 2 वैल्यू रहती है तो करेक्ट 2 के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि 2 लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 0 1 दो बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग अ ज़ीरो एज एन एडिशन, ठीक है। वो एडिशनल हमारे पास है क्योंकि 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्ट उतने ही लूपिंग हो सकते थे, इटरेशन हो सकते थे, बट अगर ज़ीरो अगर है तो उसमें एक एडिशनल होता है। तो जैसे अगर वैल्यू हमने 2 दे दी तो इट डेफिनेटली एग्जीक्यूट्स 2 टाइम्स बिकॉज 0 इज एडेड, अदरवाइज इट इज़ n minus 1 इन नॉर्मल केस, ठीक है। एरे अगर नहीं रहता है तो ये फॉर लूप उतने बार ही एग्जीक्यूट होगा, कितने बार? तो n minus 1 टाइम्स, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है? अगर 4 है तो 4 minus 1 मीन्स 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा इफ़ वी आर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ अ j इक्वल टू 1, ठीक है। बट इन एरे में ऐसा नहीं होता, एरे में ज़ीरो से ही चालू होगा, एरे हमेशा ज़ीरो से ही चालू होता है। उसके वजह से यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी n की वैल्यू होगी कंडीशन चेकिंग करते टाइम पे, या फिर b की वैल्यू या फिर a की वैल्यू, that much of time loop will be execute। so the first loop will execute the one time, then second loop will execute for the 2 times because we are using the 2 by 2 matrix, then again it will goes to the outer loop, again it will execute for the one time, again it will enter into the inner loop which will execute for the 2 times and the condition then becomes false, then it will check to the condition of a outer loop whether it is true or not, but it is false because 2 times increment, that does a 0 value will be increment to the 1 and 1 value will be increment to the 2, and in that case 2 less than 2 for the 2 by 2 matrix, 2 less than 2 is the false condition. So this complete for loop and their execution will stop. Understood? Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Now in the next part
what we are doing, same procedure, no change, not at all a single change, just a change in between the reading a of 1, instead of that we read the a of 2. ठीक है, तो ये अगर पार्ट आपको समझ में आ गया इतना, तो नीचे का जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, वो आपको एज इट इज़ ही लिखना है, नो चेंज। फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन ए, आई लेस देन ए, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, देन ओपनिंग bracket for j equal to 0, j less than b, j plus plus, again opening bracket, then printf statements, enter। यहाँ पे डबल एन लिया है उन्होंने, कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल एन भी लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बैकस्लैश एन। सो एंटर द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सेकंड मैट्रिक्स, ये एक छोटा सा चेंज है, फर्स्ट के जगह पे हम सेकंड मैट्रिक्स बोलेंगे, एंड ए ऑफ 1 के जगह पे हम ए ऑफ 2 बोलेंगे। रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स आर रिमेन सेम, एग्जीक्यूशन विल रिमेन सेम, करेक्ट। सो हमने इस प्रकार से दो मैट्रिक्स आपने यूज़र से उनका एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट के जो डेटा है वो आपने ले लिया, ठीक है। नाउ up to now we are just fetching the data which is given by the user। now what we want to do, entered matrix R। अब फिर से, ठीक है, अब ये थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी उटपटांग लगती है हमको, क्योंकि इतने सारे फॉर लूप्स हम यूज़ करते जाते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट बहुत से उसमें से फॉर लूप जो है वो रिपीटेड है, ठीक है। अब इसमें भी वही कर रहे हो कि अगर पहला जो फॉर लूप है वो क्या कर रहा है, पहला फॉर लूप मीन्स नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, सिंगल फॉर लूप नहीं, आई एंड जे कंबाइन, ठीक है। तो ये जो क्या कर रहा था, ए ऑफ 1 को रीड कर रहा था और स्टोर कर रहा था, दूसरा ए ऑफ 2 को रीड कर रहा था और स्टोर कर रहा था। अब सच में उसने ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 को रीड किया कि नहीं किया, दैट विल बी shown over here। enter the matrix, same loop will be there, for loop I equal to 0, I less than a, I plus plus, printf बैकस्लैश n। अब ये बैकस्लैश n क्यों दिया, so that the output will show like a matrix format। then again we use the another for loop and we just have to print %d। जनरली हम करते हैं ना सम a प्लस बी, ए और बी की वैल्यू हम रीड कर लेते हैं स्कैनएप से, और जब प्रिंट एफ हम लिखते हैं तो प्रिंट एफ में क्या लिखते हैं हम, डबल कोट्स में सम इक्वल टू %d, डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा सम। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट रहता था सबसे आखिरी वाला, जिसमें रिजल्ट हमको डिस्प्ले करना रहता है, स्टोर्ड रिजल्ट जो स्कैनएफ के थ्रू ऑपरेट होता है, सो वो हम उसी प्रकार से यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं प्रिंटफ में, ठीक है, ए ऑफ 1 को। देन बैकस्लैश एन, देन वी आर यूजिंग अ सेम मैकेनिज्म, अगेन देयर इज अ कॉपी पेस्ट। अगर ए ऑफ 1 के लिए आपने जो भी फंक्शनैलिटी या फिर जो भी फॉर लूप्स यूज़ किए हैं, सेम आप ए ऑफ 2 के लिए यूज़ करोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूस है वो प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, फॉर लूप लेंगे हम, बैकस्लैश एन लेंगे, जे का फॉर लूप लेंगे विच इज़ अ कॉलम बेस, देन अगेन %d ए ऑफ 2 आई जे। तो यहाँ तक के हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट नेस्टेड फॉर लूप विल एक्सेप्ट द एलिमेंट्स, first for loop will accept the elements of a of 1, second for loop nesting for loop will accept the element of a of 2, after that first nesting for loop will accept the value of or will display the value of a of 1, and the fourth nesting for loop will display the value of a of 2 array। यहाँ तक कि ये पूरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है, वही बहुत बड़ा लगता है हमको, ठीक है। नाउ द एक्चुअल पार्ट दैट कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स, ठीक है। अब तक के हमने क्या किया, वैसे उस चीज़ को कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो हमने अब तक के किया है उसको कोई मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। इवेल्यूएट भी कर लेते हैं उसको तो कुछ आउटपुट उसका काम का नहीं है, इट इज़ जस्ट वॉट डिस्प्ले द मैट्रिक्स विच इज़ एंटर्ड बाय द यूज़र, डिस्प्ले द matrix elements which is entered by the user। now the picture or now the story will start over here, that product of a two matrix, ये आएगा मैसेज printf में है इसकी वजह से। now here I equal to 0, I less than a,
I plus plus, then j equal to 0, j less than b, j plus plus. Again, for loop will be same. Now what they are doing, they are initializing the value of c of ij equal to 0. ठीक है, तो ये तीसरा जो वेरिएबल था जिसमें हम a1 ऑफ ij एंड a2 ऑफ ij के मल्टीप्लीकेशन स्टोर करने वाले थे, उसको हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0. कोई बता सकता है क्यों हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0? वाई वी इनिशियलाइज एज अ 0? एनीवन? सर क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, वेस्टेज। क्या पता क्या बोलते, तो हमको क्या पता क्या बोलते हैं, और कोई कुछ बोलता है क्या? सर मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, और कोई? वाई वी इनिशियलाइज सी ऑफ आई जी इक्वल टू 0? क्या हो गया, सब शांत हो गए? कितने हैं? 42. एनीवन? सी ऑफ आई जी इक्वल टू 0. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. सम इक्वल टू 0, ये हमने कहीं तो भी इनिशियलाइज किया था, याद है? यस सर। सर वही सेम Yes, कंसेप्ट sir. यही भी अप्लाई करने वाले हैं हम, मगर मुझे वही वर्ड याद नहीं आ रहा। ओके ओके, जो सवेरे गाड़ी आती है ना, सर गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू. गार्बेज वैल्यू। यस यस यस, वही था वो जो याद नहीं आ रहा था. Garbage value was that. So if we are not initializing c of ij as a 0, अगर ऐसा नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो गार्बेज वैल्यू वो दे देता है. ठीक है, तो बहुत बार अगर आप ऐसे गलती से अगर कोई वेरिएबल एक्सेस कर लेते हो तो गार्बेज वैल्यू आपके प्रोग्राम में आ सकती है. ठीक है, तो उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से. देन नाउ द थर्ड वेरिएबल विच कम्स इनटू द अकाउंट, पहला जो था i दैट डील्स विद द रो, जे वो भी रो के साथ डील करता है, A1 A2 के. नाउ के वाला जो है दैट डील्स विद द थर्ड पार्ट ऑफ अ सी ऑफ आई जे, सी ऑफ आई जे के साथ वो डील करेगा. के वाला फॉर लूप, के इक्वल टू 0, के लेस देन ए, के प्लस प्लस. के लेस देन ए बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ए की वैल्यू डिमांड की थी यूजर से. अगर पहला प्रोग्राम अगर स्टार्टिंग का देखते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं कि हमने ए की वैल्यू डिमांड की थी यूजर से, दिस वन, यानी यहाँ तक. ठीक है, दैट्स वाई वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ के विद द ए, नॉट द बी. बी के साथ नहीं कंपेयर कर रहे हम. क्यों? क्योंकि हमको जो वैल्यू मिली थी वो ए की मिली थी यूजर से. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, सी ऑफ आई जे विच इज द मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट स्टोर करने वाला एरे, दैट इज सी ऑफ आई जे. तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई जे इंटू ए टू ऑफ आई के जे. सॉरी एक सेकंड. हाँ, सी ऑफ आई जे इक्वल टू सी ऑफ आई जे प्लस A1 ऑफ आई के, A2 ऑफ के जे. ठीक है, ये समझ में आ रहा क्या हो रहा है? तो एलिमेंट्स स्वैपिंग किए जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, या फिर इस वे से भी कर सकते हो. तो अब ये इसका आउटपुट में हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इट इज जस्ट वॉट, ए प्लस प्लस इज नथिंग बट द ए इक्वल टू ए प्लस 1. उसी कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने वो लिया हुआ है. ठीक है, वाई इट इज सो, इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा प्रॉपरली इनटू द सी ऑफ आई जी. अब यहाँ पे सी ऑफ आई जी की जो वैल्यू है वो क्या है? एनीवन? सी ऑफ आई जी की वैल्यू क्या है? 0. 0. ये यहीं पे इनिशियलाइज किया हमने 0. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम व्हेन द फॉर लूप ऑफ के विल एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे सी ऑफ आई जी हो जाएगा 0.
उसके बाद A1 ऑफ आई की वैल्यू क्या है? जीरो। यस, जीरो ठीक है। के की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। हाँ, यस, दैट मीन्स सी ऑफ आई जी ये पूरा हो गया जीरो। ए वन 0 0, ठीक है। बाद में ए टू में के की वैल्यू क्या है? वो भी जीरो, और जे की वैल्यू क्या है? वो भी जीरो। सो इट मीन्स दैट A1 ऑफ 0 0 मल्टीप्लाइड विथ A2 ऑफ 0 0, ठीक है, एंड दैट complete their result will be stored into the C of ij. again, C of ij, i की वैल्यू जीरो और j की वैल्यू जीरो, वैसे उसकी टोटल वैल्यू भी जीरो है, बट ओवरराइट वाला जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इनिशियली सम की वैल्यू क्या रहती थी? जीरो, और जब उसमें हम कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता था? ओवरराइट हो जाता था, और जो जीरो है वो निकल जाता था, उसकी जगहों पे सम या फिर जो भी है डेटा वो स्टोर हो जाता। तो यहाँ पे भी वही होगा, राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, दैट वैल्यूज आर असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल मीन्स एरे विद द हेल्प ऑफ अ इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर ने इक्वल टू सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इक्वल टू ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके हेल्प के थ्रू हम उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। सो इनिशियली इन अ फर्स्ट केस A1 ऑफ 0 0 इज मल्टीप्लाइड विद द A2 ऑफ 0 0, यानी अगर यहाँ पे आउटपुट अगर हम देखते हैं, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। Now it is a 9 chapter. Okay. हाँ, yes, multiplication. Now is it visible? यस सर। Okay. यस सर। यहाँ पे ये एलिमेंट्स हमारे रीड हो गए थे, वी जस्ट हैव टू सी द आउटपुट। अगेन हियर गेट सी एच इज यूज, इन्होंने भी टू ही लिया है, साइज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स वाज अ टू, ठीक है। सो इट विल इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ दिस वन इज व्हाट, enter the matrix elements in a row wise fashion. First matrix element that is 1, then 0, then 2, then 3, तो ये हो गया 1 0 2 3। तो इसको हम कैसे देखेंगे? इट इज जस्ट लाइक 1 0 2 3, ठीक है। so this one is the A1 matrix. now यहाँ पे बीच में हमको मल्टीप्लिकेशन साइन, देन A 1 0 2 3, then 4 5 4 5 4 5 0 0 2, ठीक है। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है।
वही उन्होंने नीचे आपको रिप्रेजेंट किया है, एंटर्ड मैट्रिक्स आर। तो यहाँ पे A1 और A2 वो डिस्टिंग्विश नहीं करके बता सके, जैसे पेंट में मैंने उसको अलग करके बताया है, ठीक है। दिस वन इज, ये जो है पहला पार्ट, ठीक है। दिस सर दिस हाँ, यस। सर आपने कुछ लिखा है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा। नहीं सर। इज स्क्रीन विजिबल और नॉट? विजिबल है सर. Visible आहे sir. दिसत आहे सर, स्क्रीन दिसत आहे. विजिबल आहे पण पेंट लहान फॉन्ट आहे एकदम. पेंट नाही इज पेन विजिबल। दिसतच नाही. नो सर. पेंट किसी को नहीं दिख रहा है? दिख Yes, रहा sir, है. visible आहे. दिसत आहे सर, दिसत आहे. जस्ट अ मिनट। नाउ ये तो बोल्ड है। सर मैं रिजॉइन होता. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ इट इज विजिबल। Yes sir. Yes, sir. ओके Yes sir. यस सर. Yes sir. ओके। सो 1 0, दिस वन इज 1 0। ये पेंट कहाँ चला जाता है? Now both screen are visible properly. यस सर. Yes sir. Yes sir. इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं अपन। So this one is the 1 0, then you can match over here 1 0 2 3 1 0 2 3, then 4 5 0 2 4 5 0 2. Now it is a 2 by 2 matrix, so output will be definitely 2 by 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? नॉर्मल केस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम? 1 into 4 plus 0 into 0. 1 into 4, ये हो जाएगा पहला ब्लॉक, प्लस 0 into 0. 0 into 0, ये हो गया आपका, This is the first block. दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा दैट मीन्स 4 इक्वल टू 4, ठीक है। देन C11. Sorry, C00. एक सेकंड, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका पहला एलिमेंट, ठीक है। नाउ सेकंड एलिमेंट के लिए रो इनटू कॉलम, तो क्या 1 into 5 plus 0 into 2. 1 into 5. 5 प्लस 0 into 2. 0 into 2, ठीक है, इक्वल टू, तो ये 5. जो 0 हो जाएगा 0 into 2, नाउ योर आंसर विल बी द 5। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहले 1, First row into first column, then first row into second column. यस 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 यस, 1 into 4 मीन्स 0 0, ये पोजीशन क्या है 1 की, A1 of 0 0 मल्टीप्लाइड विद द A2 of 0 0, ठीक है। देन 0 into 0, रो into कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 of 0 1, इसको क्या बोलेंगे आप, A1 of 0 1, ये जो है दिस वन, इसकी पोजीशन क्या है, A1 of 0 1, 0th row and first column will be multiplied with whom, this one, ठीक है। इसकी पोजीशन कोई बता सकता है? A2 ऑफ क्या है ये, 0 1. A2 ऑफ 0 1 नहीं, ये 1 सर रो है उसकी ना, पोजीशन ये 1 रो है ना, 1 0 1 0. 1 0, हाँ 1 0, A2 ऑफ 1 0, ठीक है। दैट्स वाई इन द प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है उसमें उन्होंने क्या कर दिया है,
एन बाय एन मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है। फॉर्मूला में उन्होंने चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? आई के a1 ऑफ आई के मल्टीप्लाइड विद द a2 ऑफ के जे, a1 ऑफ आई के, ठीक है। तो I इज रो एंड K इज दिस फॉर लूप, ठीक है। एंड A2 ऑफ के जे, के ये फॉर लूप वाला है और ये जे जो है वो कॉलम वाला है, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम के लिए आपको आई जे नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है, जो रीड करते टाइम पे हम लेते हैं। वी हैव टू यूज द आई के एंड के जे, ठीक है। सो इन दैट केस दिस 1 इंटू 4, 0 इंटू 0 हो जाएगा 4, बाद में 1 इंटू 5 एंड 0 इंटू 2 वो हो जाएगा यहाँ पे 5, एंड द लास्ट वन दैट इज वो हम क्या लेंगे 2 रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस, हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ आवाज़ इतनी है क्या? Yes, sir. ऐसा नहीं सर। ओके ओके ओके, सो प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, जिनका आवाज़ अनम्यूट हो चुका है, ठीक है। सो रो इंटू कॉलम 2 इंटू 4 देन 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, ठीक, इक्वल टू द आंसर इज 6, राइट। एंड नाउ द लास्ट वन इज 2 इंटू एक है 5, ना? सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सर, 2 into 5। no no, it was 8, 2 into 4 8, 8 8, अच्छा, इसका आंसर 8 है। yes yes। Now here is 2 into 5, 2 into 5 plus we are having 3 into 2। 3 into 2, 3 into 3 into 2, 10 plus 5 equal to 15, 16। correct, 60. 60 in minutes. 10 plus 6. Now in that case what happened, whether your answer is correct or wrong you can check with the help of a program, ठीक है। प्रोग्राम में आप चेक कर सकते हो। जनरली प्रोग्राम होते हैं उसी के लिए कि हम जो भी मैनिपुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, दैट वी कैन चेक विथ अ फ्यू टेक्निक्स, ठीक है। तो 4 5 8 6 ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको मिलता है, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इफ वी वांट टू डू द 3 by 3 मैट्रिक्स, 4 by 4 मैट्रिक्स, 5 by 5 मैट्रिक्स, कैन वी डू विद द सेम प्रोग्राम? यस, यस सर। वी कैन डू टिल, कहाँ तक के लेके जा सकते हैं आप, ये कोई बता सकता है? 3 by 3, 4 by 4, एनी नंबर। एनी, आर यू श्योर? यस सर। आर यू यस श्योर? सर, क्योंकि यस। कंफर्म? यस। एनीवन? आफ्टर वॉचिंग ओ ओ इनिशियलाइजेशन, ओ ओ ओ ओ ओ 10 by 10 तक के। ओके दैट्स राइट। एनी नंबर नहीं ले सकते हैं हम क्योंकि उसकी साइज स्पेसिफाई की हुई है 10 by 10, ठीक है। उसके अगर हम देते हैं तो इट विल शो द एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स वगैरह अलग अलग तरीके से एक्सेप्शन या फिर एरर भी दे सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्सेप्शन ही देगा, एरर भी दे सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट योर एरे शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड शुड बी बिलो द 10 by 10। सर हाँ यस। सर, तो यहाँ पे हमने अगर n/n लिखा तो फिर हम कितने भी नंबर दे सकते हैं? हाँ, we can give either a blank or give the variable. In that case you can take any number, but screen छोटी नहीं पड़नी होकर होना, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट जब फिक्स करना है आपको तो उसमें स्पेस रहेगा। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है ना, क्या तो एक कॉलम दिखने को ना रो दिखने को ना, ऐसा मैट्रिक्स ना। तो अगर आप सोचते हो कि वाह मैं जैसे 50 by 50 का देता हूँ, ठीक है, तो वो तो दिखेगा नहीं ना स्क्रीन के ऊपर 50 by 50 का, 50 कॉलम 50 रो,
2500 एलिमेंट्स। हाँ, तो इतने सारे एलिमेंट्स में भी बड़ी स्क्रीन अगर रहती है लैपटॉप वगैरह की तो उसमें दिख जाएगा। मोबाइल वगैरह में तो बहुत दिक्कत जाएगी, वो तो सब एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, सो डोंट डू दैट। वी वी कैन हैव 4x4, 5x5, 6x6, दैट्स इट। ठीक है, so that is what about the multiplication of a matrix. Now if you want to do the addition of matrix, can we do it? Can we perform the addition of matrix? यस सर। So definitely try for it, addition of matrix, and we will see that in next lecture. So next topic is multi-dimensional array. Now in case of multi-dimensional array, it means that we are having a rows and columns plus something more than that of what exactly it is. So C allows the array of a 3 or more dimensions. Generally rows और columns ये दो dimensions होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, बट उसके अलावा कोई और भी डायमेंशंस होता है। सो दैट वी विल सी इन केस ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल अरे, दैट द एग्जैक्ट लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर ऑफ व्हाट एग्जैक्ट लिमिट डायमेंशंस। डायमेंशन जो होते हैं उसकी एग्जैक्ट लिमिट कंपाइलर डिसाइड करता है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ मल्टी डायमेंशन एरे इज सेम है, S1 S2 इसके पहले हम यूज करते थे रो एंड कॉलम, यहाँ पे S3 एंड अप टू सो ऑन SM। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ डायमेंशंस आप दे सकते हो। ठीक है, so where si is the size of the ith element. Suppose like that integer survey is having the 3 dimension 3, 5 and 15. float table is having the 4 dimension. कौन से 4 dimension हो सकते हैं टेबल के? टेबल कोई बता सकता है? फोर डायमेंशंस ऑफ टेबल, लेंथ, साइडची साइड्स, एग्जैक्टली लेंथ। हाइट हाँ हाँ, यस यस, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ थिकनेस yes एंड लेंथ ऑफ। yes. So as per that values you can get a 3D object. ये जो वैल्यूज हमें मिलती है इससे हमको क्या मिलता है? 3D ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे पहले हमने 2x2 मैट्रिक्स में, 3x3 मैट्रिक्स में, यानी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में हमने 2 डायमेंशन वाला देखा था जिसमें लेंथ एंड हाइट हम बोल सकते हैं, यानी कॉलम एंड विड्थ थी। ठीक है, बट राइट नाउ we are having a 3 or more than dimensions. Here survey is the 3-dimensional array declared to contain 180 degree type elements. सर्वे यानी क्या होता है? वो जो ये इसका सर्वे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिविल इंजीनियरिंग वाले करते हैं सर्वे। ठीक है, उनका सर्वे जो रहता है वो टेक्निकल सर्वे रहता है विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट डिवाइस. If anyone know, then you can tell that we can say that that binocular or something like that, and they find out how to maintain the level of a road. You may observe sometimes on a road side एक कोई तो भी पर्सन रहता है, उसके हाथ में एक स्केल रहती है, और कोई एक दूर से एक पर्सन रहता है जो उसमें से देखता है, और वो वहाँ पे वो लेवलिंग का कुछ तो भी चेकिंग करते हैं। तो अब अपना हमारे कॉलेज में भी होता है, वो बच्चे करते हैं प्रैक्टिकल्स ऑन ग्राउंड, बट व्हाट दे डू आई रियली डोंट नो. सो दोज आर हैविंग अ सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रांच, दे सर विल ते मोजतात सर किती मीटर आहे का म्हणजे नेमकं काय मोजतात? समजा एक जागेपासून शेतमताच्या वेळेस ना ते एका जागेत कॅमेरा असते तो कॅमेरातून त्या तो काडी असते ना त्यातून मीटर समजते सर Okay, so that can be observed over there. So that is a survey. So it is completely 3-dimensional survey. ठीक है, उसमें हाइट भी रहेगी, लेंथ भी रहेगी, विड्थ भी रहेगी। ठीक है, सिमिलरली टेबल इज हैविंग अ 4 dimensions and that are containing the 300 elements of a floating point values. ठीक है, 300 elements. क्यों 300 elements? Anyone? 300 एलिमेंट्स कहाँ से आ गए? कोई बता सकता है क्या टेबल के रिलेटेड?
नो वन? 3x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट स्टोर होते हैं? 9। 9 एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो मुझे बताइए 5 इंटू 4? 20। 20 इंटू 20. 20 इंटू 20. 5? 20 इंटू 5? 100। और 100 इंटू 3? 300. 300। 100. सो दैट इज नथिंग बट द इन 100 ऑर्डर टू मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एरे में स्टोर होंगे, दैट विल बी डिफाइंड ऑन दैट पर्टिकुलर साइज। उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हमको। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 12 इंटू 5 60 and 60 into 3 180. So 180 integer type elements will be stored into the survey array and table array में 300 elements store होने वाले हैं। ठीक है। 2 डायमेंशन अगर हम लेते हैं तो उस केस में ये इतने सारे एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आपको यानी एक बहुत बड़ा डेटा उसमें जनरेट करना पड़ता था। ठीक है। एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि जहाँ पे लेंथ विड्थ और ब्रेथ ये 3 डायमेंशंस ऑलरेडी है, तो उसमें उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो 2 डायमेंशन में। ठीक है। सो फॉर दैट वी आर हैविंग अ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं दैट 3-dimensional array is having a survey like rainfall, or we can say that currently we can see that how many patients that are recover from the covid. ठीक है। so that they can donate their plasma. ये अगर हमको सर्वे करना है कि कितने लोगों की रिकवरी हो चुकी है प्रॉपरली कंप्लीटली एंड दे कैन डोनेट देयर प्लाज्मा, एंड बिकॉज ऑफ दैट 2 पर्सन 2 लोगों की जान बच सकती है एक प्लाज्मा डोनर की वजह से। ठीक है। ये अगर हमको सर्वे करना है सो वी कैन यूज़ द मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट अ मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। देन उसका कोई एग्जांपल वगैरह नहीं दिया है। सो लास्ट टॉपिक ऑफ अ एरे इज़ व्हाट? डायनामिक एरे, जो हम इसके पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। डायनामिक एरे और विच वी आर हैविंग अ मैलॉक, कैलॉक एंड रिलॉक फंक्शंस। ठीक है। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली द डायनामिक एरे? We create the array at a compiler time. An array is created at a compiler time by specifying the size in the source code has a fixed size. जैसे अभी मैंने एक सवाल पूछा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि हम कितने बाय कितने का मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो एक जवाब आया था कि हम n बाय n का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, बट वो नहीं हो सकता था। क्यों? बिकॉज वी इनिशलाइज A1 10/10 और A2 10/10, ये इनिशलाइज करके रख दिया था। वही वहाँ पे बताया जा रहा है कि वी फिक्स the size of a matrix during the source code writing and we cannot modify at a run time. ठीक है। वो आप क्या कर सकते हो? मॉडिफाई नहीं कर सकते हो once the program is running. ठीक है। The process of allocating memory at a compile time is known as a static memory allocation. जब कंपाइल हो रहा है और तब मेमोरी allocation करनी है तो it is a static memory allocation. The array that receives the static memory allocation are called as a static array. Name itself indicates that ये static है। ठीक है। यानी जब आप उसको मेमोरी अलोकेट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइल हो रहा है और वो मेमोरी अलोकेट कर दी है आपने पहले से ही। ठीक है। उसमें कोई डायनामिकली चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। जैसे हम एटो में बैठते हैं। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा उटपटांग है बट फिर भी कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। हम एटो में बैठते हैं, एटो में परमिटेबल सीट्स कितनी रहती है? हाउ मच सीट्स कैन, हाउ मच पर्सन कैन सीट इनटू द एटो? 3। नॉर्मल एटो छोटा वाला, वो बड़ा वाला नहीं, 3। 3 to 4. 3 to 4। 3. चलो ठीक है, 3 कंसिडर करो कंफर्टेबली। ठीक है। कंफर्टेबली हमको बैठना है सबको 3। ठीक है। उस पर वेट भी ना आए। वेट ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली ऑटो कंज्यूम ज़्यादा करेगा फ्यूल, और फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो डेफिनेटली वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करेगा। अगर वो पेट्रोल डीजल वाला ऑटो है तो, इलेक्ट्रिक वाला है तो मे बी थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे, यानी फ्यूल का इशू होगा। ठीक है। बट उसमें वेट का थोड़ा सा रेशो कम ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक में आप ज़्यादा अगर पर्सन बैठते हैं तो वो नहीं चल पाएगा माइंड भी। ठीक है। वो इतना, क्रेजी भाग गया वो। हाँ यस, वो इतना लोड नहीं बेयर कर पाएगा। बट पेट्रोल डीजल वाला जो रहेगा एटो, जिसकी परमिटेड जो सीट कैपेसिटी है दैट इज 3। बट सच में ऐसा होता है क्या?
बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि ऑटो में 3 लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऑटो वाला, ठीक है। उसमें रहते हैं 3 से ज़्यादा ही, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 10, कभी-कभी कुछ ऑटो के एक्सीडेंट हो जाते तो पता चलता है उसमें से 15-20 लोग निकले। ऑटो इतना सा, ठीक है, और उसके अंदर 15 लोग, 12 लोग, 13 लोग, ठीक है। वो कैसे बैठते पता नहीं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ जो भी वो आप अलोकेशन करते हो, ठीक है, एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है, इट इज़ जस्ट व्हाट आप आगे हो जाओ वो पीछे हो जाते हैं, ऐसे करके वो सारा अलोकेशन हो जाता है। सो इज़ इट रियली पॉसिबल इन केस ऑफ मेमोरी कि थोड़ा सा मेमोरी खिसका दो, आगे खिसका दो और इसको पीछे ले लो? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये मेमोरी है, ये कोई ऑटो नहीं है, ठीक है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो द सेम कंसेप्ट इज लाइक अ स्टैटिक इफ इट इज, अगर आप उसको ऑलरेडी डिफाइन करके रख रहे हो, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। रोड रोलर चलता है, ठीक है, रोड रोलर देखा है सबने, यस सर। ठीक है। बाकी भी व्हीकल चलती है, कोई रोड रोलर को पीछे से हॉर्न बजाता है क्या, हट रे, साइड में हो जा, होता है कभी ऐसा? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, कोई नहीं बोलता है, ठीक है। रोड रोलर अगर आ रहा है तो लोग साइड देते हैं, ठीक है, हट जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा, ठीक है। वो पिछड़ जाएंगे। आदमी को हाँ, किसी के सामने लेकर जाएगा। एग्जैक्टली वो पूरा प्लेन कर देगा, जमीन को पूरा लेवल कर देगा, ठीक है। उसका स्पीड भी बहुत कम रहता है, बट रोड रोलर को कोई हॉर्न नहीं देता, ठीक है, क्योंकि उसको ये भी नहीं बोलता कि भाई सीधे से चला, बराबर चला, ठीक है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता रोड रोलर को। उसका बेचारे का स्पीड भी कम रहता है, ठीक है, और वजन तो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। So the case is, if you are having a static allocation, in that case you can't change it. Compiler time में भी आप उसको change नहीं कर सकते हो, we just have to allocate below the value. 10 है, 20 है, तो उसके नीचे की values आप उसमें आपको दे सकते हो, but because of this approach works fine as long as when we know that exactly what our data requirements, ठीक है। यहाँ पे data requirements हमको पता है, then it is okay. बट अगर डेटा रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ये जो पार्ट रहता है ना, उसके ऊपर 60 to 65% हमारी कंपनी चल रही है आज, एमएनसी जो चल रही है वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पे चल रही है, ठीक है। जैसे कोई लिफ्ट लगाता है घर पे या फिर ऑफिस में, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है कुछ ना कुछ। हम कार खरीदते हैं, टू व्हीलर खरीदते हैं, उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर का भी मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इनसाइड द सॉफ्टवेयर, वी हैव टू पे दैट मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर समझो आप आगे जाके, यानी अभी आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, उसमें प्री डिफाइंड साइज दे दी कि एक सर्वे करना है जिसमें 3x3 मैट्रिक्स और उसकी साइज़ रहेगी। अभी पॉपुलेशन हमारे अमरावती की लगभग समझो एक 10 लाख वगैरह होगी, मे बी, आई डोंट नो और करेक्ट है कि रॉन्ग है, 10 लाख ज़्यादा बोल दिया है मैंने तो, पर कंसिडर कर लीजिए कि 10 लाख पॉपुलेशन है, उस हिसाब से मैंने डायमेंशंस दे दिए, ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर 2 ईयर विल बी सेम द पॉपुलेशन? नो सर। डेफिनेटली इट विल नो सर। इंक्रीज। सो वंस इट विल इंक्रीज, मेरे जो पैरामीटर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं एरे में, वो तो सफिशेंट नहीं रहेंगे उस डेटा को हैंडल करने के लिए। 10 लाख के वो 11 लाख भी हो गए तो भी नहीं, थोड़ा सा भी बढ़ गया तो भी नहीं, ठीक है। सो इन दैट केस our data requirement if is not known to us properly, in that case we can use a dynamic array allocation. So उन्होंने एक सिचुएशन दी है दैट डायनामिक मेमोरी अलोकेशन की, तो वो हमने देखेंगे, बट इट इज जस्ट व्हाट एग्जांपल दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज, यू कांट इंक्रीज इट बीइंग एज अ यूज़र, ठीक है। जैसे अगर आप टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, कोई भी मूवी टिकट या फिर कोई भी टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे बुकिंग करते हो अभी वैक्सीन के लिए वगैरह, तो आपको अगर लगता होगा कि उसमें एक आधी सीट ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिकॉज देयर साइज इज़ फिक्स। 100, 200, 300 जो भी होगा वो उन्होंने फिक्स करके रखा है, एंड वंस इट विल बी ऑक्यूपाई, 200 ऑक्यूपाई हो गए तो मैसेज आ जाता है बुक, ठीक है। और बुक होने की वजह से उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो डायनामिकली अगर रहेगा, इन दैट केस अगर कोई नहीं जाता है, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन के लिए अगर कोई नहीं जा पाता है, तो इमीडिएटली उसने शो करना चाहिए कि यस, दिस मच ऑफ सीट्स आर अवेलेबल,
दिस मच ऑफ सीट्स आर नॉट अवेलेबल, ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो ये डायनामिक नहीं है, वहाँ पे वो स्टैटिक ही है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया यानी ऑक्यूपाई कर लिया, अपॉइंटमेंट ले ली, वो बुक हो जाएगा। उसी दिन उतने लोग अगर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बट उसमें से कुछ लोगों ने अब्सेंट ही लगा दी, वहाँ पे भी अब्सेंट रह गए, यानी भूल गए वैक्सीन लेने जाने के लिए, या फिर ड्यू टू सम रीज़न दे आर नॉट ready to go to that particular place for the vaccination. In that case what happened, that slot becomes empty, उनका जो slot था वो empty गया, वो waste गया। तो अगर डायनेमिक एरे हम उसमें अगर यूज़ करते थे या फिर करते हैं, ठीक है, रन टाइम में, तो वो आपको बता सकता है इजीली कि 5 बजे तक का समय है, 4:45 बजे वो आपको बता सकता है, या फिर 4:30 बजे बता सकता है कि 4 स्लॉट्स आर देयर, 4 वैकेंसीज है, वो अभी तक आए नहीं हैं, ठीक है। और 5 बजे तक वो अगर नहीं आते हैं तो इमीडिएटली वो डोज वेस्ट जाने से अच्छा है जिनको ज़रूरत है उनको आप दे सकते हो, जो वहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ अ डायनेमिक एरे। सो ये एक एग्जांपल है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन का, एंड दैट कैन बी कैरी विद द हेल्प ऑफ अ some of the functions malloc, calloc and reloc, and that are written in the one header file that is stdlib.h, standard library.h। ये हेडर फाइल में उनका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये जो कैलॉक मैलॉक फंक्शन और रिलॉक फंक्शन है, ठीक है, तो इसके एक वन वन लाइन की डेफिनेशन हम देखेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो इज इट अटेंडेंस इज अवेलेबल? Yes, sir. ओके, सो द मोर पॉइंट्स अबाउट द एरेज, ये एक हम पार्ट देख लेते हैं, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। यूजिंग द प्रिंटर्स फॉर एक्सेसिंग एरेज, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इन्होंने बताए गए हैं। दैट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एरे एंड देयर एप्लीकेशंस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, देयर आर सम important aspects of applications of array. They include using printers for accessing array, प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं हम, मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग द एरे। पासिंग एरेज एज अ फंक्शन पैरामीटर, सो फंक्शन पैरामीटर में भी आप एरे को पास कर सकते हो, यानी जैसे वाइड मेन हम लिखते हैं ना, ये जो वाइड मेन लिखते हैं हम, वाइड मेन, और इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ वॉइड, ठीक है, तो ये जो वॉइड है, ये जो ब्रैकेट है, मेन फंक्शन है ये, करेक्ट। उसके अंदर जो मैंने वॉइड लिखा है, इट इज़ व्हाट अ पैरामीटर पासिंग। जब भी स्क्वायर सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा फंक्शन के बाद में और उसमें कुछ वैल्यू अगर पास करी कर दी जाती है या फिर कुछ लिखा जाता है, इट इज़ व्हाट अ पैरामीटर पासिंग, ठीक है। तो एज अ एरे, आप एरे को एज अ पैरामीटर पासिंग भी कर सकते हो। एरे एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो अब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर क्या करता है। तो जैसे एरे कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप्स एंड स्टोर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन, वैसे स्ट्रक्चर क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ अ डिसिमिलर एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स, इनको अगर स्टोर करना है तो हम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स, by using a structure data type as array elements, तो यूजिंग स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को एक एरे एलिमेंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, वैसे एरे एक डेटा टाइप वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। एरे एज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, जो अभी हमने देखा, मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन कैरेक्टर्स एरे एंड स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिलेटेड भी हम एरे को यूज़ कर सकते हैं, जो हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। तो इसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है बेनिफिट्स ऑफ अ एरे दैट वी ऑलरेडी नो, बट if there is a some drawback, so that can be removed with the help of a structure. So that is about today's class. Now, okay, so is that the attendance available, correct?